Hello dear students, PGMC 4th semester. The paper which we are doing, the basic of advertising and public relations, and this is your 4th lecture. The topic which I have yet covered are introduction, definitions and meaning concept of advertising, history and development of advertising, types of advertising and types of advertising appeals. Today which the topic I have to cover is the basic of advertising, copywriting and visualization. Now here it is one of the very important factor for the purpose of advertising. अगर हम विज्ञापन की बात करते हैं तो उसमें कॉपीराइटिंग का क्या महत्व है वो बहुत ज़रूरी है जानना. So copywriting is the act or occupations of writing text for the purpose of advertising और अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग. नेचुरल है. कॉपीराइटिंग क्या है? कॉपीराइटिंग एक तरीके का जब हम विज्ञापन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बिके, लोग उसको समझे, द प्रोडक्ट दैट वी हैव टू सेल, दैट इज द कॉपी राइटिंग. So the product called a copy or a sales copy and is written context that aims to increase brand awareness and ultimately pursued a person or group to take a particular action. कॉपीराइटिंग की वजह से क्या होता है, जो हम कंटेंट लिखते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वो इतना इंस्पिरेशनल होता है कि जागरूकता पैदा करता है. जो भी कस्टमर्स है उसके अंदर एक ब्रांड की अवेयरनेस पैदा करना, ultimately pursuing a person or a group of people to take a action on that particular brand. उसके बारे में सोचे. पंच लाइन ऐसे हमको लिखनी होती है, ऐसा कंटेंट मैटर फाइंड करना होता है, so that we can inspire a person or the audience or the customers to buy the particular brand. A copywriter job is to encourage some kind of actions. Some misconstruct copywriting to be the practice of merely selling services, but it's more than that. So a copyright can help you accomplish a multitudes of goals. एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो आपको एक कॉपीराइट के एक्ट से एक एडवर्टीजमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है. सो कॉपीराइटिंग कैन बी फाउंड इन मैनी प्लेसेस. एडवर्टीजमेंट्स में मिलता है, ब्रोशर्स, CTA, और and are often the first of the pop examples in your mind. So direct email marketing campaigns, script for videos and podcast, gated content like white papers and case studies, blog content, social media copy and captions. So there are number of copywriting steps and we will be doing few of the steps which are very much important for the act of copywriting. What are their functions? That is very much important. And as I told that where the copywriting is must, it's being given over here. You can find the copywriting in the direct email also, marketing campaign also, scripting for video when we are making a video, so in that also we can find it out the scripting, in the blog content, in the social media, in the case study, we can find the content of the copyright. Okay, so something is very important, few of the steps. First is to exploit your product's benefit. Then exploit your competition weaknesses. Know your audience. Communicate WIIFM, that is what's in me for. Understand your medium and avoid too much of information. So here are few of the basic steps of copywriting. First is the exploit your product's benefit. The first step of copywriting outline is the foundation
फॉर योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अपने उत्पादों के लाभों का लाभ उठाएं। तो यू हैव टू एक्सप्लॉइट योर प्रोडक्ट्स बेनिफिट। अ बेनिफिट इज द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर। नेचुरल है, जब आपको बेनिफिट होगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो वो आपके कस्टमर की वजह से ही है। इट्स अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, बेनिफिट आपकी वैल्यू को मिल रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, अ बेनिफिट इज दैट द प्रोडक्ट कैन, और फॉर अ कस्टमर हाउ द प्रोडक्ट कैन हेल्प अ कस्टमर। किस तरीके से आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर की मदद कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कस्टमर होगा वो बिना सोचे समझे आपके प्रोडक्ट को स्विच ऑन नहीं करेगा, नेचुरल है। कहीं ना कहीं हमें फीचर्स दिखाने होते हैं, उसके एडवांटेजेस बताने होते हैं, देन ओनली अ पर्सन विल क्लिक टू योर ब्रांड। सो यू नीड टू पुट इन वर्ड्स द रीजंस योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट अवेलेबल एंड बेटर देन योर कॉम्पिटिटर। कुछ ऐसे हमें मेन इम्पॉर्टेंट रीजंस लिखने होंगे कि आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स की कंपनी वाले बैटर उससे बहुत बेहतर है। क्या क्या क्वालिटीज़ है उसमें, क्या क्या खूबी है, दैट वी हैव टू पुट टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर। द सक्सेस to the key is point that fully understood all the benefits of your products. So this is how you will make your exploit your products benefit. तो अगर कहीं ना कहीं हमें अपने ब्रांड की सफलता चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने जो उत्पादक है उन सभी लोगों को पूरी तरह से समझें। उनको बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स, उसके प्लस पॉइंट्स, उसके एडवांटेजेस बताएंगे, तभी जा कर के हमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। देन द सेकंड इज द एक्सप्लॉइट योर कॉम्पिटिशन्स वीकनेस। आपको किस तरीके से ये फ़ायदा उठाना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, उनका प्लस पॉइंट उठा करके आपको आगे बढ़ना है। सो यू हैव टू राइट द कंपेलिंग कॉपी। It is essential that you know what differentiates your products from the competition. Once you know your competitors' weakness, you must make sure your audience know them and understands why buying your competitors' products and would be an inevitable mistake. Get product by truly researching your competitors and understanding what they offer in terms of products and services. तो आपको इस तरीके से देखना है, जब आप लिखते वक्त अपनी कंपेयरिंग कॉपी लिखते वक्त जब हम कंपेयर करते हैं अपने कंपटीशन से, तो इट इज़ एसेंशियल दैट यू हैव टू नो व्हाट डिफरेंशिएशन योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। क्या चीज़ ऐसी हमें करनी है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उससे थोड़ा हट करके अलग लगे। सो वंस यू नो योर कॉम्पिटिटर्स वीकनेस, एक बार जब हमें पता चल जाता है कि इसकी सामने वाले की कमज़ोरी ये है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू मेक आवर स्ट्रैटेजी टू इम्प्रेस द ऑडियंस, to understand the values of the audience so that your customer can buy the product, and by buying your competitors' products would be inevitable mistake. So get starting how to research your competitions and understanding that what are the things we can make to just catch out the weakness of the competitors. Then third top point is know your audience. अब किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किसी भी ब्रांड का बहुत ज़्यादा हमें अगर वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी ऑडियंस को समझना, अपने दर्शकों को जानना कि उनको क्या चाहिए। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू सी दैट एवरी एड इन द वर्ल्ड, नेचुरल। कोई भी, हर व्यक्ति के पास इतना वक्त नहीं होता कि एक एक ऐड को वो ध्यान से देखे। ईच ad has a specific audience that will see it.
and it's a marketing job to find the best placement to ensure the target audience will see it. और हमें ये देखना है कि कौन सा इंसान कब, अब इतना वक्त किसी के पास नहीं होता कि एक एक ऐड को हर इंसान बैठ कर के देखे फिर उसमें से जज करे कि कौन सा बेस्ट है, हमें को वही लेना चाहिए, नहीं. So now here each ad has a specific audience and the marketing job is what? जब हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करते वक्त ही हमें ये पता चल जाता है कि किसको, किस इंसान को, किस ऑडियंस को क्या चाहिए, तो उसका प्लेसमेंट ऑफ टारगेट ऑडियंस हमको वहीं से मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, an ad for the skateboards placed in the local senior citizens housing association newsletter is not to generate a lots of sale. In fact, it would be waste of advertising dollars. So the target audience for skateboards is teenagers and young adults. तो एक हर प्रोडक्ट की अपने आप में कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट्स होते हैं. अगर हम ये देखेंगे कि जैसे स्केटबोर्ड है, तो उसको अगर हमने बहुत हाई फाई सोसाइटी में लगा दिया उसका एड, और तो क्या पीपल अट्रैक्ट करेंगे? नो, एवरीवन विल नॉट सी. हु विल सी? ओनली द यूथ, द टीनेजर्स, दोज हु आर हैविंग द क्रेज टू बाय दैट स्केटबोर्ड. केवल वही लोग अट्रैक्ट करेंगे. तो हर प्रोडक्ट का अपनी एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है. तो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस. नेक्स्ट इज कम्युनिकेट. Now how you will communicate? There are the variety of reasons to create an advertising or marketing place. Before you write copy for your promotional piece, you need to understand your goals for that piece. जब हम लिखते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो हमें सबसे ज़्यादा ये देखना है कि हम उस प्रोडक्ट को कितना जानते हैं, हमारा अचीवमेंट क्या है, हमारा गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू गेट इन रिटर्न, हमें वापस में मिलने क्या वाला है. So the copy you use in each ad or marketing piece will be varied based on your goal for that promotion. While this work does not focus on the development of marketing plan and strategy, so there are the different types of marketing piece that in turn of affect the copy. Communicate a special offer, share information and raise awareness. ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं which will be very much helpful for writing a copy ad. That is the communicate a special offer, share information and raise awareness. हमको कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को अगर और ज़्यादा हाईलाइट करना है, तो उसमें हमें स्पेशल ऑफर्स डालेंगे. कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, दैट हार्डली मैटर्स. उसकी नेगेटिविटी को देखते हुए, उसकी वीकनेस को देखते हुए हमें क्या करना है, that is very much essential. So we have to communicate the special offers in the product, share information. जितनी ज़्यादा information हम जागरूक करेंगे कि इसके संग ये फ्री है या इसके संग इतना डिस्काउंट है, तो definitely people will get attracted and we have to raise the awareness according to it. So generate leads, answer your target audience questions, that what in it's for me. You have to answer the audience questions. ऑडियंस क्या देखती है, एक कस्टमर क्या देखता है कि इसमें मेरे लिए प्लस पॉइंट क्या है. सो दे बेसिकली नीड इन ईच ब्रांड विद अ डिस्काउंट और समथिंग वेरी स्पेशल ऑफर और बाय वन गेट वन फ्री. दिस काइंड ऑफ ऑफर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ऑडियंस को ही प्रमोट करने के लिए होते हैं कि किस तरीके से ऑडियंस उस चीज़, उस पर्टिकुलर ब्रांड को स्विच करेगा और खुद लेगा, फिर 4 लोगों को बताएगा. So here we cannot see that how, what it matters. We have to keep in mind that what audience is wanting, because audience always target that what in it's for me. उस प्रोडक्ट को मैं क्यों लूँ, ऐसा क्या है उसमें. So here is what the communicate, WIIFM, that is what's in it for me. Okay, so here that we are paying for your ad and space, possibly graphic designs too. So don't waste your money by placing an ad in effective copy.
that does not clearly tell your customers what they will get for buying your product or service. बेहतर ये है कि फालतू में पैसा सिर्फ होर्डिंग्स पे या कहीं भी आप बैनर वगैरह बना करके बहुत क्रिएटिव करके 3D इफेक्ट्स डाल करके पैसा ना वेस्ट करा जाए, बल्कि वो पैसा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इफ़ेक्टिव वे में जाए कि जो आपका ऑडियंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को स्विच करे, बिकॉज ऑडियंस ऑलवेज वांट समथिंग वेरी स्पेशल, and that is why number of the products are having the special offers, 10% discount, 15% discount, buy one get one free. This makes audience to attract to buy that particular brand, and this is what the fourth point says. Then we are moving to the next point. Understand your medium. Now as you write your copy, be aware that each different medium where an ad is placed requires a different tone or style. जहाँ भी हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हैं, उसके एडवर्टीज़मेंट को, तो हमें ये जागरूक रखना है कि वो कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस प्लेस के लिए, उसकी क्या टोन है, उसकी क्या स्टाइल है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर प्लेसिंग योर एड. अब किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को, हाई फाई स्टेटस के ब्रांड को अगर आप किसी गांव के लोकेलिटी में लगा देते हैं तो वो शायद ही वहाँ कोई एक या दो देखे. नो नीड टू प्लेस इन दैट पर्टिकुलर विलेज एरिया. वी हैव टू स्विच, वी हैव टू कीप आवर ब्रांड इन दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर अकॉर्डिंग टू इट people focus on it. Hi-fi status, or the people those who are buying, the regular customers, like if you are publishing a shoes ad, so there who will buy? The society people will buy. So you have to place the orders on the society place where the people get attracted to buy that particular brand. So it's depending on you that where you are placing the ad. The copy here changes the base on the audience who will see that particular ad. So are you placing your ad in the local newspapers or in the billboards? Are you placing your ads in the women's magazines or in the news magazines? Different media requires different copy to most effectively persuade a particular audience to act. So this is something where you have to understand your medium. किस वे में आप अपने प्रोडक्ट को पब्लिश कराते हो, इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगजीन्स और इन एनीथिंग. जो भी पर्टिकुलर ब्रांड है, अगर वो ब्रांड वुमेन सेक्शंस के लिए है तो डेफिनेटली यू विल स्विच टू द वुमेन मैगजीन्स, बेसिकली पैम्फलेट्स or the newspapers. If the particular brand is for only for the women, so you will go to the magazines of the women sections, of the men sections, of the newspapers and all. So this is all the points of the copywriting steps. So the next topic is visualization in advertising. अब विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको कैसे दिख रहा है, राइट? व्हाट यू आर सीइंग. कस्टमर्स अपने ब्रांड को देखता है तभी वो चुनता है. सो व्हाट इज द विजुअलाइजेशन इन एडवर्टाइजिंग? द बेस्ट वे टू हेल्प योर कस्टमर्स विजुअलाइज इज टू एक्सपोज देम टू मच सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. जितना ज़्यादा हो सके अपने ब्रांड को एक्सपोज करना है. कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? उसका लोगो बना करके, उसकी ग्राफिक डिज़ाइंस करके, उसके अंदर इफ़ेक्ट्स डाल के, 3D इफ़ेक्ट्स डाल करके, सो दैट इट गेट्स अट्रैक्टिव टू द कस्टमर. द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट पीपल टू वांट व्हाट यू ऑफर इज टू encourage them to visualize how their lives and would be if they expect it, right? So how they are accepting it? They are just making the goal of visualization is to guide a customer to stop comparing and start wanting. सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अपने हमें विजुअलाइजेशन ऐसे करनी है कि लोग इन चीज़ों को कंपेयर ना करें कि ये बेहतर है या उस कंपनी का बेहतर है. तो विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स मेक इट हाउ
Visual imaginary has been effective, the way to communicate both abstract and concrete ideas. Since the dawn of the humanity, visualization is an technique for creating image, diagrams, animations और to communicate a message. तो विजुअलाइजेशन का जैसे कि बताया, जब हम कोई चीज़ विजुअल करते हैं तो विजुअल करने के लिए उसके कितने इफेक्टिव्स होने चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू यूज़. जो टेक्निक्स है वो है क्रिएटिंग इमेज, अपने इमेज को कितना क्रिएटिविटी बनाएं, डायग्राम्स और एनिमेशंस टू कम्युनिकेट अ मैसेज. The first point is logo, brand logo, brand symbol, or in words, companies and organization that seeks to create a unique identifier for themselves have a logo. लोगो क्या होता है? हर एक ब्रांड का सिंबल होता है जहाँ से आपकी कंपनी की पहचान बनती है. If a person cannot identify the logo, then it's difficult to understand what company it is. Like suppose Samsung, LG, any of the logos. तो जहाँ पे जब हम सैमसंग देखते हैं तो उसका सिंपल एक सैमसंग है, तो एस ए की जगह इट्स अ कट. देन इफ द लोगो यू आर वॉचिंग ऑफ द LG और एनी ऑफ द प्रोडक्ट, तो LG के पहले देयर इज अ राउंड सिंबल वेयर इनसाइड इट इज created effects are being given. Number of ads are with their help of the logo, they are brandful. तो हर ब्रांड का एक अपना लोगो होता है जिससे उसकी पहचान बनती है कि yes, one can identify it what the product is. Logo are design symbols and the graphic mark. लोगो एक डिज़ाइन होती है, सिंबल होता है या फिर एक ग्राफिक मार्क्स होता है. The public instantly recognize the brand association along with the sense of loyalty. अगर देखा जाए तो कंपनी को अगर नाम याद नहीं है तो सिर्फ एक सिंबल के अकॉर्डिंग ही पहचान जाएंगे कि yes, this is particular of that brand. So this is very much important to have a creativity of the logo. Then trademark. Trademark are used to make the product unique. Trademarks are used to distinguish it from other brands that offers the similar products. A trademark is a distinctive sign or indicator used by an individual, business organizations, or other legal entity to identify the product or the service to customer with a trademark that appears to originate from the unique source and distinguish its products, service from those to other entities. अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को दिखाने के लिए एक ट्रेडमार्क बनाया जाता है जो एक सिंबलाइज करता है कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है एंड इट डिस्टिंग्विश, वो दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड से कहीं ना कहीं कंपैरिजन में अलग दिखता है. सो दे आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर ब्रांड एंड ऑफर द सिमिलर प्रोडक्ट्स. ओके, so it's a distinctive sign or indicator used by an individual, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और द लीगल एंटिटी. हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर इंडिविजुअल कंपनी का ट्रेडमार्क अलग होता है जो सिंबलाइज करता है दूसरे प्रोडक्ट की दूसरी कंपनी से थोड़ा डिफरेंट होकर. देन ग्राफिक्स इफेक्ट्स. अब ग्राफिक्स क्या है? व्हेन समथिंग हैज़ टू बी प्रेजेंटेड विजुअली, ग्राफिक्स आर यूज्ड. जब हमें कोई चीज़ विजुअलाइज करनी है सिर्फ उसको देख करके ही, तो वहाँ पे हमें ग्राफिक इफेक्ट्स मिलेंगे एंड दे आर जनरली यूज्ड टू कन्वे अ मैसेज, क्रिएट अ न्यू ट्रेंड, अरेंज वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर्स एंड स्टाइल्स एक्सेट्रा. ग्राफिक्स कैन बी जियोमेट्रिक शेप्स और दे मे इवन टू बी डिसऑर्डर्ड एंड इरेगुलर. तो ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स जनरली यूज़ होता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपने न्यू ट्रेंड को बढ़ाने के लिए, अरेंज वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर्स एंड स्टाइल. ग्राफिक्स किसी भी शेप में हो सकता है, ज्योमेट्रिकल शेप में हो सकता है, इट मे बी द डिसऑर्डर्स एंड इरेगुलर ऑल्सो. सो इफेक्टिव यूज ऑफ कलर, टेक्स्ट एंड ड्राइंग कैन मेक अ ग्राफिक लुक विजुअली अपीलिंग. जब हम जितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव कलर्स डालेंगे ग्राफिक डिज़ाइन में, उसमें जितने टेक्स्ट डालेंगे
जितनी ड्राइंग क्रिएटिविटी करेंगे वो उतना विजुअलाइज अपीलिंग लगेगा. And they are usually displayed on t-shirts, walls, papers, and cover of the CD. So magazines that make us a lot of graphics. Recently, infographics are being used widely to use the make concept interesting and clearly understand. जो recently graphics का इस्तेमाल हो रहा है वो है infographics, which are widely used to make your logo, to make your brand very appealing to the customer. जहाँ पे कस्टमर देखेंगे बहुत अपीलिंग लगेगा, उसको समझेंगे, इंटरेस्ट आएगा उनको, एंड दे विल स्विच टू द प्रोडक्ट विच दे आर वांटिंग. सो दिस इज ऑल in the basic of advertising copy and visualizations. We did it. जो भी पढ़ाया गया है, dear students, please try to understand the concept of it and clear your doubts. If you're having any of the doubts, just please be clear with it and attempt the questions according to it. That's all for today. Thank you, class.